हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ PCS 2024 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ OBC SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ 2024 PCS ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊ ਹੋ ਜੂਗੀ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ PCS 2024 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ PCS 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਾਲੇ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿਕਿਉਰਡ ਰੈਂਕ 103rd ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਆਫ 244 ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਲ ਜਨਰਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 266 ਸੀਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 22 ਮਾਰਕਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਕੱਟ ਆਫ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 725 ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਫੇਅਰਲੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 2021 ਨੂੰ ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਅਗਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਸੋ 2024 ਦੇ PCS ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨਸ ਹੈ ਐਂਡ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸਰ ਬਣੋਗੇ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ A ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ GS ਅਤੇ CSAT ਇਹ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ CSAT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CSAT ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ CSAT ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ CSAT ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ CSATs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ CSAT ਸੀਗਾ ਉਹ CAT ਲੈਵਲ ਦਾ CSAT ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ MBA ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਸੀਗੀ CSAT ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡਡ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ CSAT ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ CSAT ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ CSAT ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ GS 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ CSAT 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। GS ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ GS ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ UPSC ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ UPSC GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 100 ਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ UPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, नॉट इन वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि मोस्टली अपना फोकस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर क्रांतिकारी मूवमेंट्स से होंगे जो सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति की सी। बट विश्व युद्ध पहली जो हुई सी उदों भी रेवोल्यूशनरीज जोड़े है इंडिया के आए थे, बरकतुल्ला एंड होर भी इदा के लोग जोड़े है वो आए थे। तो फोकस की है, फोकस ये है कि यार मतलब तुसी कोई भी चीज़ छड़नी नहीं हैगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे की होगा कि तुहानू मतलब दे विल कैच यू, है ना। मतलब मैं तो यही कहना कि एग्जामिनेशन वाले दे कैच यू ब्लाइंडेडली कि बई इन्हें आ नहीं पढ़िया ये सवाल पूछते हैं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि तुसी ध्यान रखना है कि GS भी उस लैवल की तैयारी करनी है कि मतलब है ना कि हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए है। 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन की नॉलेज तो कंप्लीट होनी चाहिए है। अगर मैं कट ऑफ की गल करा तो इन्होंने दोनों के विचों कट ऑफ जी सी वो 400 के विचों अगर मेल जनरल की अगर मैं गल करा तो मेन जनरल की कट ऑफ 244 गई सी, 244 नंबर गई सी, एंड विच इज़ एक्चुअली लैस। पहला जाती सी 292 गई सी पिछले तो पिछले बारी जो PCS होया सीगा वो 292 गई सी, लेकिन मेल जनरल की कट ऑफ 244 गई, यानी कि कट ऑफ रिड्यूस हुई है। कट ऑफ रिड्यूस होने का मतलब है कि दोनों लैवल्स ऑफ पेपर जोड़ा है वो काफ़ी मतलब इन्होंने लैवल चकता सीगा पेपर का, विच इज़ वाई लोगों मतलब कट ऑफ क्लीयर करनी मुश्किल हो गई सी, एंड 292 तो 244 कट ऑफ आ गई। एंड तुसी देखो कि UPSC भी पिछले 2-3 सालों तो ना काफ़ी चेंजिस कर रहे अपने नेचर ऑफ क्वेश्चनस दे विच। पहला UPSC सिंपल क्वेश्चन पूछता सीगा, है ना, विच केड़ी ऑप्शनस ये करैक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करैक्ट 1 and 2, 2 and 3। पिछले 2-3 सालों तो क्वेश्चन आ रहे हैं कि बई दसो बई किन्ने पेयर मैचिंग करते हैं। पिछले साल जिमें क्वेश्चन आए थे वो रफली 10-12 क्वेश्चन से किन्ने पेयर मैचिंग करते हैं, लेकिन इस साल ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द UPSC पेपर जो पेयर मैचिंग से सीगा। एंड पेयर मैचिंग के क्वेश्चन जोड़े होंगे है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ये अगर तुहाडा एक भी मतलब तुहाडा नहीं होया सैट तो वो गलत हो जाऊगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुसी उस लैवल ते ही प्रैपरेशन दे विच देखना है कि तुसी है ना मतलब PCS दे विच भी एक्सपैक्टेड है कि पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चन आने पूरे पूरे चांसिस है। हुण पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चन एड्रैस किवें करना है, अगर तुसी बिल्कुल कंसैप्चुअली क्लीयर है हो, है ना, जो तुसी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो एंड उस टॉपिक नूं तुसी बिल्कुल फोकस क्लीयर कंसैप्ट नाल उन्होंने रीड कर रहे हो, तो फिर वो पेयर मैचिंग वाले क्वेश्चन जोड़े है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो मैनू यही लगता है कि इस बारी भी जो GS ते CSAT है वो टिपिकली एक हायर लैवल ते ही रहेगा, जिमें कि पिछले साल आया सीगा उस तरीके का ही फंडा रहेगा। हुण आ जाओ मेन्स की गल। मेन्स की जो आप गल करते हैं PCS दे विच, तो PCS के मेन्स दे विच अपने को 4 GS हो जाते हैं, एक अपने को ऑप्शन सॉरी एक अपने को इंग्लिश हो जाता है, एक अपने को पंजाबी हो जाता है, एंड एक अपने को हो जाता है एसे का पेपर, ठीक है। सो इदा करके अपने को जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये है। जो मैं 4 GS की गल करदा तो 4 GS दे विच अपने को कोई एक GS दे विच 250 नंबर होंगे, तो 1000 मार्क्स का GS का पेपर होंदा है, राइट। जो मैं इंग्लिश की गल करदा तो 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर होंदा है। जो मैं पंजाबी की गल करदा तो 100 नंबर का पंजाबी का पेपर होंदा है, एंड एसे जोड़ा होंदा वो 150 नंबर का होंदा है। एसे तो स्टार्ट करते हैं आप 3 एसे पूछे जाते हैं PCS के विच, ठीक है। सो जिमें UPSC के विच 2 एसे पूछे जाते हैं, PCS से 3 एसे पूछे जाते हैं। बट UPSC के विच की होंदा है उन्होंने A ते B करके पार्ट दिता होंदा है कि पार्ट A च एक ऐसे लिख दो एंड पार्ट B च दूजा ऐसे लिख दो। इदा PCS नहीं पूछते, PCS के विच तुहानूं 8 ऐसे दे देंगे, सीधा सीधा ही 8 ऐसे दे देंगे एंड कह देंगे कि 8 विचों कोई भी 3 ऐसे तुसीं जो है लिख सकते हो। हुण जिवें तुसीं देखा होगा UPSC के विच एसेज जिहड़े हैगे वो थॉट बेस आने शुरू हो चुके हैं। पहला आते होंगे थे बड़े स्पैसीफिक ऐसे कि बई हाँ जी है ना ग्लोबल वार्मिंग ते लिख दो या विमेन एम्पावरमेंट ते लिख दो, इदा नहीं है। हुण तां मतलब जिवें कोई थॉट आ गया है ना, उस थॉट के उपर तुसीं 4-5 पेज लिखने है। तो पिछले साल PCS ने भी इदा का कंसैप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की सी, हालांकि PCS ने मिक्स जा रखा, 60% एसेज जोड़े थे वो मतलब सीगे बेसिकली कंसैप्चुअल एंड 40% सी थॉट प्रोसैस बेस। लेकिन मैनू ये पक्का लगता है कि जो इस साल PCS आऊगा वो ज़्यादा एसेज जोड़े थॉट बेस आएंगे, यानी कि अगर 8 ऐसे तुहानूं दे रहे 8 च 5-6 ऐसे थॉट बेस होंगे एंड 2-3 ऐसे जोड़े है तुहाडे स्पैशलाइज एसेज होंगे। तो तुसीं ये ध्यान रखना है कि थॉट बेस एसेज नूं या कोटेशन बेस एसेज नूं किवें अटैम्प्ट करना है, वो किस तरीके नाल आपां वो स्ट्रैटेजी बनाईए, किस तरीके नाल उन्होंने विजुलाइज करिए, इमैजिन करिए उन्हें एसेज नूं, सो दैट मतलब आप पेपर च जाइए तो अपना मतलब कॉन्फिडेंस होवे एक कि बई इन्हों आप इस तरीके नाल जो है अटैम्प्ट करांगे।
फिर पंजाबी ते इंग्लिश की अगर मैं गल करा, पंजाबी ते इंग्लिश PCS दे विच क्वालीफाइंग नहीं हुंदा, ठीक है। UPSC च क्वालीफाइंग हुंदा, PCS च क्वालीफाइंग नहीं हुंदा, मार्क्स जुड़ते हैं। एंड ये अगर 100 नंबर के पंजाबी इंग्लिश है तो ये जिन्ने मार्क्स आएंगे तो फाइनल मार्क्स के जुड़नगे। पंजाबी इंग्लिश के पेपर च बहुत सिंपल होंदा, 50 मार्क्स पंजाबी इंग्लिश के सिमिलर जो चलता, 50 मार्क्स के होंगे जिमें कॉम्प्रीहेंशन हो गया, प्रेसी हो गया, एसे राइटिंग हो गया, लैटर राइटिंग हो गया, इदा करके होंदा। एंड 50 नंबर की ग्रैमर होंदी है। तो तुसी इन्हां दोनों दे विच भी आपदा पूरा मतलब स्ट्रोंगली अपना मतलब देखना है कि 50 नंबर की ग्रैमर एंड 50 नंबर का तुहाडा जिहड़ा है ना मिक्स जा कॉम्पोनेंट है वो क्लीयर होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पंजाबी ते इंग्लिश दे विच भी आपां मतलब जिहड़ा है ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे मैं देखे है जिहड़े मतलब GS च बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, फिर SA च भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि उन्होंने UPSC की प्रैपरेशन होंदी है, लेकिन पंजाबी च जाके मार खा जाते हैं। एंड कंपटीशन इस लैवल का कि एक एक नंबर ਲਈ लड़ाई हैगी है ना। तो तुसी पंजाबी दे विच मार नहीं खानी, इंग्लिश च मार नहीं खानी। काफ़ी मतलब मेरे नाल दे स्टूडेंट्स देखे जिहड़े कि पंजाबी नूं तैयारी नहीं करते एंड अल्टीमेटली जाके 48 47 45 नंबर आ जाते हैं एंड इवेंचुअली फिर जाके वो है ना मतलब पिछे चले जाता रैंक। तो पंजाबी ते इंग्लिश नूं लाइटली नहीं लैना, इनफैक्ट एक भी नंबर नूं लाइटली नहीं लैना आपां पेपर दे विच। तो उस तरीके नाल इहनूं अप्रोच करना है। एंड GS तो बिल्कुल ही UPSC के लैवल का होंदा, पेपर भी UPSC के लैवल का ही आता है एंड चैकिंग भी UPSC के लैवल की होंदी है। तो ही तुसीं देखिया होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ये जे होंदे हैं जिहड़े कि UPSC दे रहे होंदे नाल PCS दे रहे होंदे है, उन्हां दा UPSC च भी सिलेक्शन हो जाता है, फिर उन्हां दा PCS च भी सिलेक्शन हो जाता है। एंड वो क्यों होंदा है? बिकॉज वो लोग जिहड़े है ऑलरेडी UPSC की तैयारी कर रहे होंदे है एंड उन्होंने UPSC के स्टैंडर्ड के आंसरस लिखे होंदे है एंड वही आंसरस जिहड़े हैगे अल्टीमेटली पंजाब PPSC भी जिहड़ा है वो भी चैक करता है तो अल्टीमेटली वो चो आते हैं। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये 1350 नंबर किन्ने है ये टोटल 1350 मार्क्स जिहड़े हैगे है, इन्हां मार्क्स दे विचों बिल्कुल भी एक एक नंबर की लड़ाई है। तुहाडे ऐसे भी बिल्कुल जबरदस्त होने चाहिए है, तुहाडा पंजाबी इंग्लिश दे विच भी मतलब जबरदस्त सिस्टम होना चाहिए है एंड तुहाडे GS के सबजैक्ट्स दे विच भी मतलब हर GS का सबजैक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री वांगू आंसर्स लिखने हैं, जोग्राफी का क्वेश्चन है तो मैप आना चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम आना चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंटेंट आना चाहिए, पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जजमेंट आनी चाहिए है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल्स आने चाहिए, लॉज आने चाहिए, हिस्ट्री के आंसर लिख रहे हो तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई डेट आनी चाहिए है, डायग्राम्स आने चाहिए है, सोसाइटी के आंसर्स लिख रहे हो कोई लॉ आना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम आनी चाहिए है, कोई करंट इवेंट आना चाहिए। मतलब तुसी GS के जोड़े भी सबजैक्ट्स है वो सारे सबजैक्ट्स के टिपिकली एक एक करके तुसी मतलब हरेक सबजैक्ट नूं वन एट अ टाइम लैना है एंड वन एट अ टाइम लैके आपां उहदे उत्ते जो है काम करना है। जो आपां ये सारे सबजैक्ट्स नूं लवांगे एंड फिर जाके अपने मार्क्स आएंगे एंड जिहड़े मार्क्स आएंगे अगर मैं तुहानूं पिछले साल दा ट्रेंड दसां तो पिछले साल मेल जनरल की अगर मैं गल करां तो 690 के अराउंड 695 के अराउंड कट ऑफ गई सी, 695 के अराउंड। अगर मैं अपने मार्क्स दसां तो मेरे 725 मार्क्स सीगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स ज़्यादा सीगे कट ऑफ नालों। तो 695 वाले नू इंटरव्यू की कॉल आ गई सी, ठीक है। सो वंस यू आर इन द इंटरव्यू कॉल तो इंटरव्यू के पहुँच जाने तो इंटरव्यू थोड़े 1300 इंटरव्यू के 150 नंबर की इंटरव्यू होंगी है। 150 नंबर की इंटरव्यू का मतलब है कि 1350 नंबर इत्थे एंड 150 नंबर इत्थे, तो टोटल जिहड़ा हैगा कितना बन गया 1500। तो हुण इंटरव्यू के मार्क्स जिहड़े होणगे तुहाडे प्लस तुहाडे जिहड़े मेन्स च मार्क्स होणगे वो फाइनल जिहड़े मार्क्स बनणगे वो मार्क्स के बेसिस के उपर तुहाडा रैंक जिहड़ा है डिफाइन होएगा। हुण इंटरव्यू की अगर मैं गल करां तो इंटरव्यू जिहड़ी है वो मतलब 15 मिनट की इंटरव्यू होंदी है, नॉट मोर दैन दैट। तो 10 तो 15 मिनट की इंटरव्यू होंदी है एंड तुसीं जाणदे हो उत्थे कोई अनलाइक यूपीएससी दे विच की हुंदा डिफरेंट बोर्ड्स होंदे है। तुसीं जदों यूपीएससी दे विच जाणदे हो जिद्दन तुहाडी इंटरव्यू होंदी है उदों तुसीं लॉटरी जी पैंदी है तो लॉटरी दे विच तुहाडा बोर्ड तुहानूं मतलब दस दिता जाता है कि आ फलाने बोर्ड के अंडर तुहाडी इंटरव्यू हैगी है। ये PCS इदां नहीं हुंदा, PCS इक्को ही बोर्ड बैठदा है एंड उसी बोर्ड दे विच सारे मैंबर्स जिहड़े हुंदे आ ओह तुहाडी इंटरव्यू कंडक्ट करदे आ। जिद्दन मेरी इंटरव्यू सीगी मॉर्निंग च इंटरव्यू 2 सैशनस इंटरव्यू हुंदी है, मॉर्निंग आफ्टरनून। मॉर्निंग दे विच एक बैच बनदा है एंड आफ्टरनून दे विच एक बैच बनदा है। तो जिहड़ी मेरी इंटरव्यू सी सब तो पहली इंटरव्यू सीगी उस दिन दी। तो इट्स वेरी इंटरस्टिंग कि मतलब इंटरव्यू शुरू हुई सी उस दिन सब तो पहली इंटरव्यू मेरी सीगी
ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਨਰਲੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ UPSC ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਡਾ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਆਫਿਸਰਸ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡਿਸਾਈਸਿਵ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ऑब्जर्वेंट, ਦੇ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ some sort of opinions on things that concerns our society। तो अल्टीमेटली उदा दी चीज़ां वो सवाल जवाब तो नाल गल करते हैं क्योंकि कल नूं तुसीं यही तो काम करने है ना। कल नूं कोई तुहाडे दंगियां दे उपर की परसपैक्टिव है, तुहाडे खालिस्तान दे उपर की परसपैक्टिव है, तुहाडा पंजाब दी पॉलिटिक्स दे उपर की परसपैक्टिव है, कोई पार्टी किवें हैगी है, क्योंकि कल नूं एक पोलीटिकल सिचुएशन च काम करना है तो डेफिनेटली उदां दे ही सवाल जिहड़े है तुहानूं पुछे जाते हैं। बड़े अच्छे बोर्ड मैंबर्स होंगे, काफ़ी इंटैलीजेंट बोर्ड मैंबर्स भी है, जिवें वन ऑफ द बोर्ड मैंबर्स मैनूं नाम नहीं याद हैगा, उन्हां दी जिहड़ी स्पैशलाइजेशन है वो ये है कि रूरल विमेन दी डेवलपमेंट दी वो डिस्कशनस करते, काफ़ी आर्टिकल्स उन्हां दे न्यूज़पेपर च आते। तो तुसीं कई बार बोर्ड मैंबर्स का बैकग्राउंड भी देख के जाना चाहिए कि है ना बोर्ड मैंबर्स किस तरीके दे उन्हां दा बैकग्राउंड है, क्योंकि जिस हिसाब का बैकग्राउंड होंदा उस हिसाब के सवाल भी पुछते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल वो लेडी जी है उन्हें पूछना है कि बई दसो पंजाब की रूरल विमेन के की इशूज़ है। सो इदां दी चीज़ां जिहड़ियां पुछियां जांदियां। वंस तुहाडे इंटरव्यू मैं आपदे मार्क्स दस देना, इंटरव्यू जिहड़े जनरली मार्क्स गए सी 90 गए सीगे, 90 95, मेरे लगे 63। तुसीं कहोगे सर बहुत ही घट नंबर लगे, मैनू आप नहीं समझ आई कि मेरे इन्ने घट मार्क्स क्यों लगाए, हालांकि पहला नंबर ज़्यादा लगे सीगे, इस बारी इंटरव्यू दे विच इन्नी मार्क्स लगे। शायद मैं कुछ पोलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलती, शायद मैं पोलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोली, है ना। तो देयर कैन बी मैनी रीजनस फॉर वाई दीज लो मार्क्स केम। तो अल्टीमेटली इस तो बाद तुहाडा फाइनल रिजल्ट आ जाता, फाइनल रैंक आ जाता है एंड फाइनल रैंक के बेसिस के उपर है ना तुहानूं पोजीशनस मिलदियां। सब तो टॉप से जिहड़ी पोजीशन हुंदी है वो अपने कोले SDM की पोस्ट हुंदी है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। SDM की पोजीशन तुहानूं पता ही है कि SDM कौन हुंदा है, एवरीबडी नोज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, क्लास A ऑफिसर है, पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड SDM तो उपर ADC तो उपर DC अगर वड्डे जिले है। अगर छोटे जिले है, छोटे जिले नहीं, छोटे मतलब टाउनस है जिवें भुच्चो है, रामपुर है, राम है, इत्थे दा SDM ही DC हुंदा है। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये सारिਆਂ ਦਾ DC बठिंडे का DC हो गया एंड ये सारे एरियाज़ का SDM इन्हां दा आपदा DC हो गया। सो बठिंडे च SDM भी होएगा, ADC भी होएगा, DC भी होएगा, लेकिन रामा दे विच SDM होएगा। तो SDM इज़ द टॉप पोजीशन, है ना। PCS एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है, ऊपर तक जाते जाते तुसी IAS ऑफिसर्स भी बन सकते हो, मतलब थोड़ी एम्पैनलमेंट हो जाती है 15-20 साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नेम्स भेज देंदी है सेंटर गवर्नमेंट नूं। तो अल्टीमेटली वो सारी चीज़ां जिहड़ियां है देखने को मिलदियां। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैकेंड जी पोस्ट आ जाती है दैट इज़ DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। DSP की पोस्ट आ जाती है। DSP की पोस्ट लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट होंगी है जिन्होंने फिजिकल एग्जाम करते हैं एंड वो फिजिकल टेस्ट होंगे उन्होंने क्लीयर करना होंगे। जो थोड़ा मेन्स आ जाता है, मेन्स तो बाद एक फिजिकल टेस्ट होंगे एंड उन्होंने तुसीं क्लीयर करते हो तो DSP ले जाते हो। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਲਈ एक एज की भी क्राइटेरिया है 28 ईयर्स, अगर तुसीं जनरल कैटेगरी हो 28 साल की उम्र तक तुसीं मतलब जिहड़ा है ये कर सकते हो, 28 साल तो उपर तुसीं इनएलिजिबल हो जाते हो। इस तो बाद तहसीलदार की पोस्ट आ जाती है, भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, एडमिनिस्ट्रेशन के ही काम करते हैं, जिहड़ा रेवन्यू महकमा हुंदा सारा वो सारा का सारा इन्हां दे अंडर कंट्रोल च हुंदा है। इस तो इलावा फूड सप्लाई ऑफिसर हुंदा है, FSO कह दिंदे आपां, जिन्हां दा काम बेसिकली जिन्हें फूड इंस्पैक्टर्स है उन्होंने उपर की पोजीशन होंगी है। तो जिहड़ा तुसीं देखिया होगा दाणा मंडियां तो आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो सीजन आता है उदों सारी निगरानी जिहड़ी है ये अफसर कोले होंदी है। इस तो इलावा एक एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट होंदी है जिहड़ी कि जिन्हों ETO कह देंगे फेमसली एंड इहदा काम है GST कलैक्शनस हो गई एंड इदां दीयां चीज़ां हो गई। उस तो बाद अपने को आ जाते जिवें BDPO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो तुहानूं पता होगा कि पिंडां दे विच डेवलपमेंट लई ये पोस्टां क्रिएट कीतियां गईयां सीगीआं। अगेन BDPO की जिहड़ी अकाउंटेबिलिटी है वो SDM नूं लाई करदी है, SDM अगे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाता है। एक DSP की एक स्पैशल पोस्ट भी होंदी है DSP जेल। सो जिहड़ी जेलों के DSP लगते हैं उन्होंने ये पोस्ट होंदी है DSP जेल।
है ना, जिवें बठिंडा जेल हो गई या पटियाला जेल हो गई, जेलों के विच जिहड़े अफसर लगते हैं वो DSP जेल आ जाते हैं। फिर अपने कोले होर पोजीशनस आ जांदियां, जिवें लेबर कंसाइलेशन ऑफिसर की पोस्ट आ जाती है, LCO कह देंगे, कि इंप्लॉयमेंट ऑफिसर की भी पोस्ट आ जाती है जिन्हों EGTO कह देंगे। ये सारियां पोजीशनस जिहड़ियां हुंदियां, ये सारियां ग्रुप ए पोजीशनस है पंजाब गवर्नमेंट दियां, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस ये सारियां पोजीशनस जिहड़ियां है तुहानूं देखण नूं मिलदियां। अनडाउटेडली दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशनस, है ना, फॉर एन आउटसाइडर। मैं गल ये जरूर मानदा कि जो तुसीं एडमिनिस्ट्रेशन दे विच हुंदे हो, सरकार दे विच हुंदे हो, तो तुहानूं एक डेफिनेटली चेन ऑफ कमांड नूं जो है रिस्पैक्ट देनी पैंदी है। सो है ना, वैन यू आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ नो पावर, है ना। तो अल्टीमेटली इवन इफ यू आर एन SDM, ADC is probably powerful than you, and ADC तो powerful DC है, DC तो power secretary है। तो ultimately when you are in the position, when you are in the government, there is no power, but yes definitely when you are somebody outsider तो ਉਹਦੇ लिए सारियां पोस्टां बड़ियां पावरफुल पोस्टां है, क्योंकि लॉ दी इंप्लीमेंटेशन सारी दी सारी, लॉ दी इंटरप्रटेशन सारी दी सारी, रूल्स दी इंटरप्रटेशन, रूल्स दी इंप्लीमेंटेशन, पब्लिक नॉलेज, पब्लिक रिलेशन, तो ये सारा चीज़ां इन्हां नाल काफ़ी ज़्यादा कनैक्टेड रहिंदा है। तो इस करके दीज आर वेरी सॉट आफ्टर पोजीशनस इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैन इट कम्स टू IAS। तो इस करके इन्नी जद्दोजहद है, इन्नी इन्हूं तैयारी करते लोग। एनी हाउ वो गल्लां वक्रियां है। मेरा मेन परपज़ ये नहीं सीगा कि आ पोजीशन समझाना, मेरा मेन परपज़ सीगा कि उस पोजीशनस तक किवें पहुँचना है, एंड पहुँचण लई आपां नूं एक पेपर क्लीयर करना पऊगा, एंड उहदे लई आपां नूं आ सारी दिस एंटायर थिंग वी हैव टू वॉक, है ना। एंड डेफिनेटली जे तुसीं इहनूं स्टैंडर्ड ऑफ प्रैपरेशन मैं कहना हुन्ना, अगर तुसीं उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रैपरेशन नूं जो है मीट करदे हो तो डेफिनेटली की है कि तुहाडा पेपर क्लीयर हो सकदा नहीं होएगा। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जिहड़े हैगे जो कॉम्पीटिशन च बैठते हैं वो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रैपरेशन नूं मीट नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई दे आर आउट ऑफ द गेम, है ना। हुण तुसीं वो डिसाइड करना है कि वैदर यू आर वन ऑफ दोज 99% और वैदर यू आर वन ऑफ दोज 1% जो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रैपरेशन नूं जो है मीट करने लई तैयार हैगे है। तो आई होप तुहानूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दिओ, है ना। बस इन्नी गल ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।